Today we will discuss state space search. In this lesson, we will discuss that how we can search state space for the solution of the problem. So before we start, let's discuss what is search. We can define that search is a systematic exploration of alternatives. तो हमारे पास जो है, if we have different alternatives available and we explore these alternatives to find a solution of the problem, then this process is known as search process. मिसाल के तौर पे, for example, if you have suppose you have lost your car keys. So in this case, how we will find the keys? तो हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं कि हम जो है अपने जो है से पॉकेट के अंदर देखें कि वहाँ पे तो नहीं है, या जो है से वी माइट लुक इनटू द ड्रॉअर ऑफ योर टेबल, वहाँ पे देख सकते हैं हम जो है। और दूसरी प्लेसेस जो है जहाँ पे यूजुअली आप कीज जो है वो ऑफिस से आने के बाद जो है जहाँ पे आप हैंग करते हैं उनको, उस जगह पे देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वी सिस्टमैटिकली search these different alternatives in order to find the keys, in order to find the solution of our problem. So this approach, search approach जो है, it directly we can say it corresponds to generate and test approach, an approach in which we generate a solution and then we test that solution. Either the generated solution is the required solution or not. If it satisfies our requirement, if it satisfies, you can say it, if this solution solves our problem, then we stop this process. Otherwise, we will generate another solution and we will test it. So search जो है, it is generate and test approach. इसकी example जो है already जो है we have discussed a combination lock. For example, if you don't remember that what was the combination lock, what was the combination to open your briefcase. So in that case, what we do, we generate different combinations and we test them. हम पहला कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं क्या ब्रीफकेस ओपन होता है या नहीं होता। अगर वो ओपन नहीं हो रहा, we will generate another solution, we will test that solution. Even if the problem is not solved in this case, हम थर्ड solution जनरेट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, and we will keep moving along these lines until जो है we have found the solution. So we can describe the generate and test algorithm as the first step is generate a possible solution and then test the solution. If the solution is found, अगर हमारा ये test successful है, then we are done, else we return to step 1. नहीं तो फिर जो है हम दोबारा step 1 को repeat करते हैं. One general approach to AI problem solving is to characterize the problem as state space search. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है यूजुअली हम कैसे करते हैं कि हम जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेट स्पेस सर्च। उसको स्टेट स्पेस की फॉर्म के अंदर जो है वो आप कह लेंगे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट स्पेस जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ दैट प्रॉब्लम, जिसके अंदर जो है स्टार्ट स्टेट भी शामिल है, उसके अंदर जो है गोल स्टेट भी शामिल है, इसके अलावा वो सारे ऑपरेटर्स शामिल हैं जो हम अप्लाई करते हैं एक स्टेट के ऊपर और एक दूसरी स्टेट जो है वो अचीव करते हैं। सो स्टेट स्पेस जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यू कैन से ऑल पॉसिबल कन्फिगरेशंस ऑफ द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम की जितनी भी पॉसिबल कन्फिगरेशंस हो सकती हैं वो तमाम जो है उसको हम स्टेट स्पेस कहते हैं। लाइक कॉम्बिनेशन लॉक जो प्रॉब्लम है हमारा, इस केस में हम कह सकते हैं कि जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उस लॉक के, वो तमाम के तमाम जो है वो हमारे
स्टेट स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं. Along with the operator that we move the dial on the briefcase, एक सर्टन पैटर्न जो है उसको लाने के लिए हमें डायल मूव करना पड़ता है. ये हमारा वो ऑपरेटर है जो कि इस केस में इन्वॉल्व है. तो collection of operators as well as all the possible configurations of the problem, which also includes the start state as well as the goal state, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है स्टेट स्पेस है. और इस स्टेट स्पेस के अंदर जब फिर हम सर्च परफॉर्म करते हैं स्टेट स्पेस के ऊपर in order to find out that particular you can say goal state जो कि हमारे प्रॉब्लम का solution है. There are number of problems that can be solved using that can be formulated as a state space search, और उसके बाद हम उस state space के ऊपर जो है search perform करके उन problems को solve कर सकते हैं. The examples include path planning, route finding है, VLSI layout है, assembly sequence problem है. जो games computer games हैं they can be represented as a state space. इसके अलावा natural language processing जो है ये तमाम के तमाम problems जो हैं these problems can be represented, can be formulated as state space search, और उसके बाद जो है हम उस state space के ऊपर जो है search apply करते हैं in order to find out the desired solution. So state space जो है state space search is the process of searching through a state space for a goal state. Once we have formulated our problem into state space, जब state space की form में हम अपने problem को represent कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उस state space को search करते हैं. We search the state space to find out the goal state, because इस state space के अंदर जो है एक state जो है या there may be more than one states जो goal states correspond करती है. तो that particular state जो है उसको find out करने के लिए हमें search करना पड़ता है state space को. State space जो है it can be often visualized as state space graph. इसको जो है हम स्टेट स्पेस ग्राफ की फॉर्म के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो है एक जो तमाम हमारी स्टेट्स हैं वो एक ग्राफ जो है वो बिल्डअप करती हैं, जिसके अंदर जो है we see that a state space graph is an ordered pair V, E, where जो है V जो है it is a set of vertices or nodes and E जो है that is set of edges. एक नोड जो है उस ग्राफ के अंदर वो रिप्रेजेंट करती है उस रियल वर्ल्ड स्टेट को, वन ऑफ द रियल वर्ल्ड स्टेट. जो प्रॉब्लम जो है हमने कहा कि प्रॉब्लम जो है इट कुड बी इन डिफरेंट उसकी जो है पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं. तो हर उसकी जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ वर्टेक्स आर नोड. उसको हम एक नोड या वर्टेक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं. रिमेंबर ये जो नोड जो होता है ये उसकी एक एब्स्ट्रैक्शन हमें प्रोवाइड करता है उस रियल वर्ल्ड स्टेट की, बिकॉज हम सारी की सारी रियल वर्ल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन जब इंक्लूड नहीं करते, हमें जो है वो जस्ट जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ वही उस नोड के अंदर जो है वो स्टोर की जाती है. सो नोड जो इट इज यू कैन से इट प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द रियल वर्ल्ड स्टेट्स ऑफ दैट प्रॉब्लम. उसके बाद जो एजेस होते हैं, एजेस जो हैं दे रेफर टू दी ऑपरेटर्स. एजेस ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने एक जो है नोड से दूसरी नोड की तरफ जो है वो कैसे मूव करते हैं बाय अप्लाइंग दैट ऑपरेटर. यानी एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट की तरफ आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें और कोई ना कोई ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ता है. तो वो पर्टिकुलर ऑपरेटर जो हम अप्लाई करते हैं टू मेक दिस ट्रांजिशन दैट इज मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट, तो वो ऑपरेटर जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एज. तो ये जो स्टेट स्पेस है हमारा वी कैन विजुलाइज दिस एज अ स्टेट स्पेस ग्राफ. और इस ग्राफ के अंदर जो है जो नोड्स हैं दे रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड स्टेट्स, और जो एजेस हैं दे जो है रिप्रेजेंट द ऑपरेटर्स. ईच एज हैज अ फिक्स्ड positive cost associated with it corresponding to the cost of the operator. हर एज जो है उसकी एक
पर्टिकुलर कॉस्ट होती है। इस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ये उस ऑपरेटर को अप्लाई करने की कॉस्ट है कि एक पर्टिकुलर एक्शन जो है हमने परफॉर्म किया उस एक्शन की कॉस्ट क्या है। तो द ऑपरेटर कॉस्ट जो है दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ दैट एज, वो उस एज की कॉस्ट बन जाती है। बिकॉज एज जो है अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, ये उस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमने एक स्टेट पे अप्लाई किया था और एक दूसरी स्टेट की तरफ हमने मूव किया था। तो उस ऑपरेटर को अप्लाई करने की जो कॉस्ट है दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ दैट एज। Each node has a set of successor nodes corresponding to all of the legal operators that can be applied at the source node state। इसके अलावा जो है इसके अंदर क्या होता है कि हर नोड जो है उसका एक आगे सक्सेसर नोड्स होता है। there is a set of successor nodes। ये जो सक्सेसर नोड्स होते हैं ये हम कैसे गेट करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर नोड के ऊपर थे, उसको हम सोर्स नोड कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर नोड कैन बी सेट एज सोर्स नोड। एक सोर्स नोड के ऊपर हम थे, उस सोर्स नोड के ऊपर हमने हमारे पास अब डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। हम पहला ऑपरेटर अप्लाई करते हैं अपने अवेलेबल ऑपरेटर्स के सेट में से एंड वी गेट अनदर नोड, अनदर स्टेट। इसको हम कहेंगे कि ये सोर्स नोड का एक सक्सेसर नोड है या उसकी आप कह लें सक्सेसर स्टेट है। इसी तरह हम अगेन सोर्स नोड के ऊपर दूसरा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं उस गिवन ऑपरेटर्स के सेट में से, तो हमें एक और नोड मिल जाता है। दिस नोड विल बी आल्सो नोन एज सक्सेसर नोड। ये भी सक्सेसर नोड है, ये भी उस सेट के अंदर हम शामिल कर देते हैं। इसी तरह हम फिर तीसरा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं सोर्स नोड के ऊपर, तो हमें एक और सक्सेसर जो है मिल जाता है, एक और जो है हम न्यू स्टेट के ऊपर चला जाता है। तो इस तरह जो है जो हमारे ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जब वो हम तमाम ऑपरेटर्स एक पर्टिकुलर सोर्स नोड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इन रिजल्ट वी गेट न्यू नोड्स या न्यू स्टेट्स एंड these states are known as the successor states of the current state या सोर्स स्टेट की जो ये तमाम की तमाम जो है वो सक्सेसर स्टेट्स कहलाती हैं। इस प्रोसेस को हम ये भी कहते हैं कि एक्सपेंडिंग अ नोड। ये जो हमने सोर्स नोड के ऊपर ऑपरेटर्स अप्लाई किए और न्यू नोड्स हमने गेट की, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सपेंडिंग अ नोड। दिस मींस टू जनरेट ऑल ऑफ द सक्सेसर नोड्स। ये जो सक्सेसर नोड्स को जनरेट करने का प्रोसेस है जिसमें हम सोर्स नोड के ऊपर ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं वन बाय वन एंड वी अचीव न्यू successor states या successor nodes, this is known as expanding a node। तो हमने किस नोड को एक्सपेंड किया है, हमने सोर्स नोड को एक्सपेंड किया, यानी उसके जितने भी आगे सक्सेसर्स या चिल्ड्रन हैं ये तमाम के तमाम जो है जनरेट होते हैं जब हम एक सोर्स नोड को एक्सपेंड करते हैं। We add them and their associated arcs to the state space graph। तो उसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो सक्सेसर नोड्स हैं उनको ऐड कर दिया जाता है स्टेट स्पेस ग्राफ के अंदर। मिसाल के तौर पे आप ऐसे जिम कर सकते हैं कि सपोज हम इनिशियल स्टेट के ऊपर थे, हमने इनिशियल स्टेट के ऊपर जो है जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल थे वो हमने अप्लाई किए एंड वी जनरेट सक्सेसर नोड्स। अब ये सक्सेसर नोड्स कैसे जनरेट हुए हैं सोर्स नोड से, बाय अप्लाइंग सम ऑपरेटर। तो वो जो ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है दैट विल बी एडेड इन द ग्राफ एज वेल, यानी वो एड्स जो है वो भी ऐड कर दिया जाता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 8 पजल प्रॉब्लम। हम अज्यूम कर सकते हैं कि 8 पजल प्रॉब्लम में हमें एक इनिशियल स्टेट गिवन था जिसमें हमारा वो जो ब्लैंक स्पेस है वो उस 3x3 के ग्रिड जो है जो हमारा 8 पजल का उसके सेंटर में है। अब जो अवेलेबल ऑपरेटर्स थे वहां पे हमारे पास 4 ऑपरेटर्स थे कि हम उस ब्लैंक को राइट मूव कर सकते हैं, लेफ्ट मूव कर सकते हैं, अप या डाउन मूव कर सकते हैं। तो गिवन दिस कॉन्फ़िगरेशन या सोर्स नोड जो हमें एक दिया गया कि जिसमें जो है हमारा वो ब्लैंक जो है वो उस 3x3 के ग्रिड के सेंटर में है, वहां पे अब हम ये उस स्टेट के ऊपर ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं 4 ऑपरेटर्स इनको अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन एंड इन रिजल्ट वी विल गेट 4 सक्सेसर नोड्स।
यानी जब ब्लैंक हम राइट मूव करते हैं तो एक न्यू नोड जनरेट होगा, इसी तरह जब ब्लैंक को हम लेफ्ट मूव करते हैं एक न्यू नोड जनरेट होगा, उसको अप और डाउन जब मूव करेंगे न्यू नोड्स जनरेट होंगे। तो बाय अप्लाइंग दीज 4 ऑपरेटर्स ऑन द इनिशियल स्टेट वी विल गेट 4 सक्सेसर नोड्स। तो ये जो 4 सक्सेसर नोड्स हमने जनरेट किए, जो हमने स्टार्ट स्टेट को एक्सपेंड किया, ये जो है अब हम उस ग्राफ के अंदर ऐड कर देते हैं। यानी हम एक सोर्स नोड ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो है आगे उसके 4 जो है वो सक्सेसर नोड्स ड्रॉ करते हैं, और जो एजेस जो हैं बिटवीन द सोर्स नोड एंड दीज सक्सेसर नोड्स वो ड्रॉ करते हैं। और हर एज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन सा ऑपरेटर हमने उसके ऊपर अप्लाई किया सोर्स नोड के ऊपर। तो इस तरह जो है इस तरह हम जो है हमारा स्टेट स्पेस ग्राफ जो है वो बिल्डअप होता है। One or more nodes are designated as start nodes. There might be a particular node that could be designated as a start node. And there are some problems in which we have more than one nodes as a start node. हमारे पास एक से ज़्यादा भी start nodes हो सकता है. Then there is a goal test predicate that is applied to determine if the node is a goal node. उसके अलावा जो है स्टेट स्पेस सर्च में हमारे पास एक गोल टेस्ट आप कह लें फंक्शन होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए। ये फंक्शन जो है ये क्या करेगा कि जब हम सक्सेसर नोड जनरेट करते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो जो सक्सेसर नोड हमने जनरेट किया, एक नई स्टेट जनरेट की है, कहीं ये गोल स्टेट तो नहीं है। तो गोल टेस्ट प्रेडिकेट जो है इट विल हेल्प अस टू डिटरमिन दैट द जनरेटेड नोड, जो हमने एक सक्सेसर नोड क्रिएट किया है, क्या वो गोल स्टेट है या नहीं है। इफ दैट इज अ गोल स्टेट देन वी डोंट नीड टू कीप वर्किंग विद दिस प्रोसेस, हम अपना जो है वो सर्च जो है उसको स्टॉप कर देते हैं। अगर हमारा ये गोल टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, इन दैट केस जो है हम फिर नेक्स्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, वी मूव विद दिस प्रोसेस। A solution is a sequence of operators that is associated with the path in state space from a start node to goal node. हमारा स्टेट स्पेस के अंदर जो है हम सोल्यूशन जो है वो कैसे कंक्लूड करते हैं। सोल्यूशन जो है वो हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स हैं या सीक्वेंस ऑफ एजेस हैं। हम यानी स्टार्ट स्टेट से हमने अपना हम लेते हैं और गोल स्टेट तक जो भी हमारा वो सीक्वेंस बनता है ऑपरेटर्स का, एक पाथ बनता है, उस पाथ के ऊपर जो जो एजेस आ रहे हैं वो एजेस क्या डिनोट कर रहे थे, वो ऑपरेटर्स को डिनोट कर रहे थे। यानी एक स्टेट से हमने कैसे दूसरी स्टेट की तरफ जो है वो मूव किया। तो ये जो हमारा पाथ है उस ग्राफ के अंदर, स्टेट स्पेस ग्राफ के अंदर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू कैन से द सीक्वेंस ऑफ एजेस, और इन अदर वर्ड्स बिकॉज एच क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स जो है ये हमारा वो सोल्यूशन होता है कि हम कैसे स्टार्ट नोड से गोल नोड की तरफ जो है वो जाते हैं। The cost of a solution is the sum of the edge costs on the solution path. अब because we said earlier कि हर operator जो है उसकी एक particular cost apply करने की, it could be same for all the operators or it could be different in case of different operators. ये same भी हो सकती है, different भी हो सकती है। Like in case of 8 puzzle problem, हमारी जो कॉस्ट जो है हर ऑपरेटर को अप्लाई करने की डेट इज सेम। हम कहते हैं कि हमने ब्लैंक को आइदर वी मूव इट वन लोकेशन टू द लेफ्ट, वी मूव इट वन लोकेशन टू द राइट, और वी मूव दिस ब्लैंक वन लोकेशन टू द अप और वन लोकेशन टू द डाउन। तो इसकी कॉस्ट जो है इस ऑपरेटर को अप्लाई करने की, ये जो 4 ऑपरेटर्स हैं पजल के केस में, वो कॉस्ट जो है वो 1 है। आप कह लें कि हर ऑपरेटर को अप्लाई करने की कॉस्ट 1 है कि उसकी मूवमेंट जो है वो एक पोजीशन अपनी जो है वो चेंज करता है in either direction, one of the जो है in either जो अवेलेबल हमारे पास 4 डायरेक्शन हैं उनमें से किसी भी एक तरफ जो है वो एक पोजीशन जो है वो चेंज करता है। तो if all the edge have the same unit cost, then the solution cost is just the length of the solution. तो in this particular case of 8 puzzle problem we can see कि हमारी जो अब टोटल कॉस्ट क्या होगी, बिकॉज हर जो एच है या हर ऑपरेटर है उसकी एक यूनिट कास्ट है, यानी वो एक पोजीशन जब वो मूव करता है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, दैट वुड बी द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स और द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट ट्रांजिशंस।
तो जितने ऑपरेटर्स या एजेस इन्वॉल्व हैं स्टार्ट नोड से लेके गोल नोड तक, उन तमाम एजेस को जो है उनकी कॉस्ट को जो है हम सम अप कर लें। तो in other words we can say the number of steps we have performed to make transition from source to the goal state जो है, या स्टेट ट्रांजिशन टोटल हमने कितने ऑपरेटर्स अप्लाई किए, उन तमाम की यूनिट जो कॉस्ट है या उनकी जो भी पर्टिकुलर कॉस्ट है उसको सम अप कर लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो सर्च प्रॉब्लम जो है इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सर्च यू कैन अज्यूम दैट वी हैव अ फंक्शन, हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो कि हमारे स्टेट स्पेस ग्राफ के अंदर जो है वो सर्च परफॉर्म करता है। तो इनपुट जो है इस एल्गोरिदम की क्या होगी, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम पी। वो एक प्रॉब्लम है एंड दिस प्रॉब्लम जो है इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्टेट स्पेस बिफोर वी स्टार्ट सर्चिंग इन दिस स्टेट स्पेस ग्राफ। तो प्रॉब्लम जो है मस्ट बी फॉर्मुलेटेड एज अ स्टेट स्पेस। ये जो है ये हमारे उस एल्गोरिदम की इनपुट होगी स्टेट स्पेस जो है, एंड वी नो कि स्टेट स्पेस क्या है। स्टेट स्पेस फॉर्मुलेट करने के लिए वी नीड टू डिफाइन अ स्टार्ट स्टेट, उसके अलावा गोल स्टेट हमें डिफाइन करना होगा। वी हैव टू डिफाइन ऑल अदर स्टेट्स, जो भी इसकी पॉसिबल कन्फिग्रेशंस हो सकती हैं हमारे प्रॉब्लम की, वो तमाम की तमाम जो है हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। वी हैव टू डिफाइन दी ऑपरेटर्स, हमें ये देखना होगा, डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, एंड वी हैव टू डिसाइड अबाउट दी पाथ कॉस्ट। इसके अलावा जो है हमें उस ऑपरेटर को अप्लाई करने की कॉस्ट जो है वो डिसाइड करनी होगी कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। आफ्टर हैविंग दिस इनपुट टू दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम जो कि सर्च परफॉर्म करेगा, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, वी अप्लाई अ सर्च एल्गोरिदम टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कि हम जो है एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम जो है वो लेंगे और उसको जो है वो अप्लाई करेंगे इस स्टेट स्पेस के ऊपर in order to find the goal state. And during this process, when we search the state space to find out the goal state, we construct a search tree. तो gradually जो है हम एक search tree जो है वो construct करते हैं। You can imagine कि देखो हमने एक start state से शुरू किया, उसके बाद जो है हमने जब उसके ऊपर जो है वो operators apply किए, तो हमारे पास जो डिफरेंट सक्सेसेस जो है वो जनरेट होते हैं, वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ सर्च ट्री। तो जो है एक सर्च ट्री जो है वो बिल्डअप हो रहा है। ये जो प्रोसेस है हमारा एल्गोरिथम को अप्लाई करने का सर्चिंग का, इट विल ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट अ सर्च ट्री। और इस एल्गोरिथम जो है उसकी जो है हम कह लें कि आउटपुट क्या होगी इस फंक्शन की, दैट विल बी अ पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू वन ऑफ द गोल स्टेट्स। तो ये एल्गोरिदम जो है जो सर्च कर रहा है स्टेट स्पेस में से, ये हमें एक पाथ रिटर्न करेगा जो कि दैट कैन लीड अस फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू द डेस्टिनेशन स्टेट या गोल स्टेट। या इन सम केसेस जो है हमें जो है ये पाथ डिजायर्ड नहीं होता, बल्कि सिर्फ हमें ये देखना होता है कि क्या गोल स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस जो है आउटपुट जो है दैट वुड बी द गोल स्टेट इटसेल्फ। वो पाथ नहीं रिटर्न करता, जस्ट जो है वो गोल स्टेट रिटर्न कर सकता है कि यस गोल स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करता है। Here you can see a generic tree search algorithm. ये जो है एक ट्री सर्च एल्गोरिदम जो है यहाँ पे गिवन है। Let's see what are the steps in this algorithm. Let frontier be a list of visited but not expanded nodes. हमारे पास एक लिस्ट है, दिस लिस्ट इज नोन एज फ्रंटियर, उसको जो है हम फ्रंटियर कहते हैं। यू कैन कॉल इट बाय एनी नेम, आप इसको सिंपली लिस्ट भी कह सकते हैं, क्यू भी कह सकते हैं। कुछ जो है टेक्स्ट जो है वहाँ पे इसको फ्रिंज जो है दिया जाता है, इसका नेम जो है, तो इट कुड बी गिवन एनी नेम। एनी हाउ वी फॉर आवर जो है पर्पस वी विल कॉल इट फ्रंटियर।
दिस इज द नेम दैट इज यूज्ड बाय द टेक्स्ट बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो फ्रंटियर एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर क्या है, इस लिस्ट के अंदर जो है ये लिस्ट है विजिटेड नोड्स की, बट ये नोड्स जो है वो अभी हमने एक्सपैंड नहीं किए। एक्सपैंड मीन्स कि अभी हमने इनके सक्सेसर्स जनरेट नहीं किए, ये वो नोड्स होंगे। यानी दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि फ्रंटियर जो है दैट इज अ लिस्ट ऑफ लीफ नोड्स, यानी ऐसे नोड्स जिनके अभी हमने सक्सेसर जो है वो जनरेट नहीं किए। तो इनिशियली जो है फर्स्ट स्टेप हम क्या परफॉर्म करते हैं, इन द फर्स्ट स्टेप वी विल इनिशियलाइज द फ्रंटियर विद द इनिशियल स्टेट। तो जो हमारी इनिशियल स्टेट है प्रॉब्लम की, हम फ्रंटियर जो है उसको उसके साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है इफ द फ्रंटियर इज एम्प्टी, अगर फ्रंटियर जो है वो एम्प्टी है, फेल, इन दैट केस वी रिटर्न द फेल, के हमारा ये जो सर्च प्रोसेस है ये फेल हो चुका है, because there is no node in the frontier to expand. Otherwise, अगर frontier empty नहीं है, we will extract a node n from the frontier. तो हम frontier में से एक node extract करते हैं, we call this node n. हम इसको कहेंगे कि ये node n है जो हमने extract किया है। Remember, extraction means कि हम frontier में से उस node को remove करते हैं। ये नहीं है कि वो node frontier में भी होगा और उसके बाद हमारे पास processing के लिए भी available है, नहीं। एक्सट्रैक्शन मींस के फ्रंटियर में से उस नोड को रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम उस नोड n के ऊपर फर्दर जो है वो प्रोसेस अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि वो जो नोड n हमने एक्सट्रैक्ट किया है, हम उसके ऊपर जो है वो गोल टेस्ट प्रेडिकेट अप्लाई करते हैं। तो स्टेप 3A के अंदर क्या किया हमने, इफ n इज अ गोल नोड, हम चेक करेंगे क्या ये n जो है ये गोल नोड है। इफ आवर टेस्ट जो है इट सक्सीड्स, तो इन दैट केस जो है हम रिटर्न कर देंगे सिंपली जो है पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू दिस नोड n। तो हम इनिशियल स्टेट से लेके n तक जो भी हमारा पाथ है वो हम रिटर्न कर देते हैं एंड वी विल स्टॉप दिस सर्चिंग प्रोसेस। हाउएवर, अगर ये हमारा जो गोल टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है, इन दैट केस वी मूव टू द स्टेप 3B। 3B के अंदर अब हम क्या करेंगे, वी विल एक्सपेंड n। हम n को एक्सपेंड करेंगे, मींस के n के जितने भी सक्सेसर नोड्स हैं वो तमाम के तमाम हम जनरेट करेंगे। वो कैसे जनरेट करते हैं कि नोड n के ऊपर जो है हम तमाम जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, गिवन ऑपरेटर्स, तो तमाम के तमाम हम वन बाय वन अप्लाई करते हैं एंड इन रिजल्ट जो है, इन रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग दीज ऑपरेटर्स वी विल जनरेट डिफरेंट न्यू स्टेट्स जिनको हम सक्सेसर स्टेट्स या सक्सेसर नोड्स कहते हैं। और ये तमाम जो नई स्टेट्स या नोड्स जनरेट हुए हैं, वी विल ऐड ऑल दीज नोड्स टू द फ्रंटियर। इनको हम n के चिल्ड्रन भी कह सकते हैं क्योंकि ये n के सक्सेसर्स हैं। सो n इज द पेरेंट ऑफ दीज न्यू नोड्स, तो दीज नोड्स कैन बी कॉल्ड एज चिल्ड्रन ऑफ n। तो ये जितने भी हमने चिल्ड्रन जनरेट किए हैं n के, दे विल बी एडेड टू द फ्रंटियर। उसके बाद जो है वी कैन जंप बैक टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में हम फिर चेक करते हैं कि इफ फ्रंटियर इज एम्प्टी वी विल फेल, रिटर्न फेल जो है। अदरवाइज क्या करते हैं कि हम फ्रंटियर में से एक और नोड एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके ऊपर उसी तरह गोल टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर हमारा गोल टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, वी विल रिटर्न द पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू दैट पर्टिकुलर नोड n। अदरवाइज वी विल अगेन एक्सपैंड दिस नोड और उसके चिल्ड्रन फ्रंटियर को ऐड करेंगे और दोबारा स्टेप 2 पे मूव करेंगे। सो वी विल कीप working along the lines of this algorithm until either the frontier is empty या जो है we have found the goal node. Okay, the type of search strategy determines how you extract and insert nodes from and into frontier. Now हमारा वो जो particular algorithm है कि वो क्या डिटरमिन करता है, वो डिटरमिन करता है कि फ्रंटियर जो है हमारी लिस्ट, इसके अंदर हम नोड कैसे ऐड करते हैं और कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जो हमारा आप कह लें कि प्रोसीजर होगा एक्सट्रैक्शन का और इंसर्शन का, ये हमारी वो पर्टिकुलर सर्च स्ट्रेटजी जो है वो डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल, फ्रंटियर एक लिस्ट है, आप इस लिस्ट के स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं नोड्स को, वहाँ से भी और वहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं। या सपोज
हम इस लिस्ट के जो है स्टार्ट में ऐड करते हैं और एक दूसरे एंड से नोड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर वेज हैं कि आइदर वी कैन इंसर्ट नोड्स एंड एक्सट्रैक्ट नोड्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द फ्रंटियर। अगर हम एक ही एंड से उसको इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्रंटियर जो है ये एक स्टैक की फॉर्म, स्टैक की तरह बिहेव करता है। या फ्रंटियर जो है ये वो क्यू की तरह बिहेव कर सकता है कि एक एंड पे हम नोड इंसर्ट करेंगे और दूसरे एंड से उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो डिसीजन है कि कहाँ पे इंसर्शन और कहाँ से एक्सट्रैक्शन करनी है फ्रंटियर में से, दिस डिसीजन इज नोन एज द सर्च एल्गोरिदम और पर्टिकुलर सर्च स्ट्रेटेजी। ये वो हमारी पर्टिकुलर सर्च स्ट्रेटेजी जो है वो डिसाइड करती है। Okay, what is the problem with this algorithm that we have just discussed? For example, what if the state space has repeated states?